month of Kartik as per the Vedic calendar. Unfortunately, today full moon day as well. Let us absorb the light of the full moon and also Prakash Purab, which itself means the light. And let us pray to the divinity that may I be able to ignite my spark, the divine light within. Inhale and exhale gently and deeply. And very gently, you can open your eyes. So, once again, namaste and warm welcome. And today is a very special day. You all can see the light, the lamp on the screen. The outer lamp is just a reflection of the inner lamp. The outer lamp is not very important, but it can remind us of our true nature. And fortunately, this day, Wednesday, we do weekly satsang, and I am in Bodh Gaya today. And just now, I'm coming directly from Bodhi tree. I came day before, and I've spent almost every second under the Bodhi tree. And I skipped my lunch as well today because this day, if you keep light, then you can absorb and just be with yourself, and you don't waste your energy in different things. So it's a beautiful day, and the weather is also very conducive. And when I look outside my window, when I see the full moon, it reminds me that how it would be if we all can share our light together with the whole world. And as today's Guru Parv, the celebration of light, truth, and divine clarity, which is our session as well today. The name of our session is Making Decisions from Clarity, Inner CEO, not fear, making decisions from clarity. And if we have to talk about clarity, if we have to talk about the opposite of confusion, then we have to talk about light. And today, Guru Nanak Ji's message is also very relevant. That's why it is called Prakash Purab. And the message itself shows the celebration of light, truth, and divine clarity. And one very important thing which Guru Nanak says, which I have recorded on all social media channels as well, the message. It is the true light is within. And when that light shines, fear dissolves. So on this day,
of Guruparv, Kartik Purnima. Is it possible for us to see that light which is not outside? ये जो बाहर का दीपक है, ये हम खुली आंखों से अपनी देख सकते हैं. इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस. पर ऐसी कौन सी आंखें होंगी जिससे वो भीतर का दीपक दिख पाए? या उससे पहले ये प्रश्न आता है कि इज इट पॉसिबल टू सी दैट? क्या ये संभव है कि वो जो दिव्य प्रकाश मेरे भीतर है उसको देखने के लिए जो मेरे पास चक्षु है, ये जो दो चक्षु हैं जो मुझे दिखाई पड़ते हैं, शायद ये पर्याप्त नहीं है वो दिव्यता देखने के लिए. इसलिए बाहरी जगत में भी, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय मैं बोधगया में हूँ, तो मुझे गौतम बुद्ध का उदाहरण याद आता है कि जिस प्रकार बाहर के जगत में जब ऐसे महापुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, तो उनसे सीखने के बजाय, उनसे जिज्ञासा करने के बजाय, उनसे प्रश्न करने के बजाय हमने किस तरीके के अत्याचार उन पर किए, किस तरीके के लांछन उन पर लगाए, किस प्रकार उनको हमने अपशब्द कहे, गलत शब्द कहे, चाहे वो नानक हो क्योंकि आज गुरु पर्व भी है. किस प्रकार समाज की ये जो दो आंखें हैं, जो भौतिक संसार के जो दो चक्षु, ये किस प्रकार उस दिव्यता को नहीं देख सकते, ये इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है. सो नानक सेज व्हेन द ट्रू लाइट, व्हेन यू सी इट विद इन, व्हेन दैट लाइट शाइन्स, फियर डिसॉल्व. इसलिए जो ये प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, दोस हु आर एनलाइटेंड बीइंग, एक चीज इनके अंदर बहुत कॉमन होती है. इफ वी सी, दे बिकम फियरलेस. इसलिए अब जब बुद्ध की प्रतिमाएं भी देखेंगे, जो 5 मुद्राएं हैं, उनमें से एक मुद्रा अभयता की मुद्रा है. अभयता का जो मतलब है, इट मीन्स फियरलेस. एंड व्हेन योर होल बीइंग बिकम्स फियरलेस, तो जीवन में कोई भी ऐसा कोई क्षण हो जहां पर कोई ऐसी परिस्थिति भी है विच इज नॉट कंड्यूसिव, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो उस समय में भी, उस क्षण में भी अपना धैर्य संभालते हुए, अपना धीरज रखते हुए भी कैसे स्थिर रहते. इस प्रकार एक चट्टानवृत जो हमारा एक चरित्र बन जाता है, जब हम किसी भी प्रकार से, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें डगमगाते नहीं, हम स्थिर खड़े हैं. एंड बिकमिंग like a rock in that situation simply means that the whole being of this person, of this entity is fearless. इसलिए वो एक अभयता का जो वरदान है, वो दिव्य प्रकाश के माध्यम से हमें प्राप्त होता है. सो हाउ फियर क्लाउड्स, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फियर, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लैरिटी. भय क्या है और उस भय से मुक्त होने का क्या साधन है, क्या माध्यम है, और किस प्रकार जब मनुष्य भयमुक्त हो जाता है तो क्या उसके जीवन में संभावनाएं होती है, क्या घटनाएं घटती हैं, और कैसा उसका चरित्र हो जाता है. कि कैसे भी संकट के बादल अगर आते हैं तो किस प्रकार वो स्थिर रहता है. एक साधारण व्यक्ति जो है, जब उसके सामने एक विकट परिस्थिति होती है, व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो हाउ द माइंड फ्लिकर्स, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे. सो आई ओपन द कॉन्वर्सेशन, आई ओपन द डायलॉग. जैसा कि हम सब जानते हैं, देर आर मेनी पीपल हु आर न्यू, बहुत सारे नए लोग भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं. मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ. तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग ये सेशन करते हैं, द वे वी ओपन द डायलॉग, हम लोग कुछ एक कॉन्टेक्स्ट लेके इसकी चर्चा को ओपन करते हैं, सो दैट वी ऑल कैन पार्टिसिपेट. सब लोग इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन रख सके, अपने विचार रख सके, और उन विचारों के ऊपर एक कंटेम्पलेशन होता है, एक जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो
हमारे भीतर के जो प्रश्न है वो साथ मिलकर एक सेल्फ इंक्वायरी होती है, एक आत्मचिंतन होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मेरी दृष्टि में कि आत्मचिंतन से ही आत्म साक्षात्कार की यात्रा संभव है। तो इस प्रकार का हमने डिजाइन किया हुआ है पैटर्न। तो आई ओपन द डायलॉग, यू मे रेज योर हैंड एंड देन वील अनम्यूट एंड देन यू कैन शेयर योर व्यूज। Yes, Jagjeet, please speak. Your voice is not audible. No, somehow the voice is not coming. I will check your device. Video setting. There's some audio setting. Okay, till the time you fix, we'll come back to you. Shalini, you can speak. Yeah. Pranam Guruji. Hello everyone. Okay. What I think like fear comes when we think about outcome of any decision. Let's say I have to take decision. I'm thinking, okay, I have two options. If I'll go with option A, what can go wrong with the result of option A? That gives fear to take decision. And somehow I see always like some, let's say with every option I see some negative outcomes. You know, it can go wrong this way, that way. For me, fear comes from there. ठीक. So means when the situation is in such that you have to take a decision, उस समय आपको कोई डिसीजन लेना है तो और आपको पता नहीं है, तो इसको एक शब्द और भी कहा गया है, द फियर ऑफ अननोन। तो जिस चीज को हम जानते नहीं है, व्हेन वी डू नॉट नो द आउटकम, व्हेन वी डू नॉट नो द सिचुएशन की कैसी सिचुएशन होगी और इसका क्या परिणाम होगा, तो एक अननोन फियर आ जाता है। इन दैट अननोन फियर समटाइम्स वी आर अनेबल टू टेक डिसीजंस। हम लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो इट इज वेरी वेरी कॉमन। ओके, थैंक यू। यस, यू कैन स्पीक। तो मैंने ना अपना थोड़ा जो जर्नी अभी मैंने रिफ्लेक्ट किया, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो हमेशा जब कभी फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी होती है और हमें कुछ बहुत बड़ा करना होता है और हमें ये लगता है कि हम एकदम बेस्ट करें और हमसे अच्छा, मतलब ये एक इसमें कोई भी गलती ना हो, कुछ भी ना हो। तो जब हम उसका सोचने लगते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कुछ मिस ना हो, तो एक फियर थोड़ा थोड़ा सीप इन करने लगता है। इनिशियली आप फियरफुल नहीं है, इनिशियली आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आपका पर्पस है, आपका विजन है। पर जैसे जैसे वो इवेंट पास आता जाता है या प्रोजेक्ट हो या कोई भी काम आपने बड़ा काम लिया, तो उसमें फिर अगर ये दिमाग में आ गया कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो उसमें फियर अपने आप में नहीं आता, ये आता है कि फिर लोगों के सामने इसकी प्रस्तुति कैसे होगी। और अगर ठीक से नहीं हुई तो वो एक तरह से ये हो गया कि ये काम ठीक से नहीं कर पाए। तो आई थिंक वो कभी कभी ये भी लगता है कि मैं जो करूँ वो बेस्ट करूँ। और अगर वो ऐसी डाउट आता है मन में कि ये नहीं कर पाएंगे तो फियर आता है। पर दूसरा पहलू जो इसका ये है कि जब अब मैंने ये सोचना शुरू किया है आपके इतने सारे सेशंस सुन के, आपकी बातें सुन के, कि जो भी है अगर हम उसको कृष्णार्पण कर दें, उसको हम शिवार्पण कर दें, कि हम जो भी कर रहे हैं वो उस भगवान को समर्पित है और उसी एनर्जी से उस काम को करें, उसके ऊपर छोड़ के कि तो वो इजी हो जाता है प्रोसेस। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, तो फियर भी कम हो जाता है और एक सहजता भी आ जाती है उसमें। तो कम शब्दों में अगर कहें तो आप कह रही हैं कि माँ फलेषु कदाचन, कि जो भी फल जी है उनको जी समर्पण कर दिया गया। जी और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं मम, कि तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। तो ओके, ग्रेट, ऑल राइट, हु इज नेक्स्ट? अच्छा ठीक है, जगजीत मैं आपको ले लेता हूँ। यस जगजीत, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक।
Still your voice is not coming. I think some issues there. Maybe you can log in from different device and see. Okay. And till the time Dr. Rashmi Sood आप आइए जी unmute please. प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे जैसे एक फियर नॉर्मल लाइफ में आता है जब मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो या मतलब स्टेज पे कुछ बोलना हो, तो वो मतलब तैयारी भी कर रहे होते हैं साथ में, लेकिन जब तक वो शुरू नहीं हो जाता एक फियर ग्रिप करता है। तो इस तरह से तो कम हो जाते हैं ना, आप कम आउटपुट दे पाते हैं, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो, तो वो फियर कैसे तो निकले? आपने कभी अपने आप से ही पूछा कि जो ये फियर आ जाता है मुझे, तो ऐसा इस स्थिति में कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग में है, कहीं पे आपको परफॉर्मेंस देनी है या कुछ है, तो आपने कभी आपसे आपसे ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि एक अम, नर्वस आ जाती है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बेस्ट आंसर हमको खुद को ही चिंतन करने से ही आता है इसका। तैयारी जब तक हो, मतलब तैयारी है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जस्ट साइकोलॉजिकल है मुझे लगता है। एक सर्वे हुआ, मैं और चिंतन करती हूँ उस पे। उस सर्वे में ये कहा गया है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फियर। जैसे कुछ लोग हैं उनको जब सांप देखते हैं तो भय लगता है, कोई सिचुएशन होती है तो भय लगता है। तो एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे में ये आया था कि सबसे बड़ा जो लोगों का फियर है वो नंबर वन पे पब्लिक स्पीकिंग का है। तो इट इज वेरी कॉमन। और इसको आपसे अपने आप पूछिए उसको कि ऐसा क्यों है, कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वाई डू आई फील नर्वस जब मैं स्टेज पर हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और मुझे लगता है कि शायद हर किसी के साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 6, so that was the time when I had to play a very beautiful character in the play, and I was asked to perform that character. And when I started performing on the stage, प्रैक्टिस चली वो 2-3 महीने, उस समय एवरीथिंग वाज फाइन। पर जब स्टेज पर वो परफॉर्म मुझे करना था करेक्टर, तो एक अजीब सा एक फियर कहें या नर्वसनेस कहें, वो तो नाम हम दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो फीलिंग है। उस फीलिंग को अगर हम सिर्फ देखें उस फीलिंग को, तो वो कैसी फीलिंग है, तो मैंने उसको बहुत करीब से जब देखा, तो मुझे लगा कि स्टेज पर जब मैं चढ़ा तो मेरे कान और मेरा चेहरा एकदम गर्म हो गए, लाल हो गए। और मेरे पैर जो है वो ऐसे कांपने लगे, दोनों पैर। वो जैसे शिवरिंग होती है जब तेज बुखार होता है। और मुझे उस समय डायलॉग बोलना था स्टेज पर। तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया, हालांकि उम्र बहुत कम थी इस भौतिक शरीर की, 6 क्लास में था ये शरीर, लेकिन मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि इफ आई एम अनेबल टू डिलीवर व्हाट आई एम सपोज टू डिलीवर राइट नाउ, व्हाट वुड बी द सिचुएशन। तो फिर मुझे उत्तर आया कि सब लोग यहाँ पर बैठ के हंस रहे होंगे कि मैं अपना पात्र सही से प्ले कर नहीं पाया। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि ये जितनी भी ये नासमझियां हैं, जितनी भी ये प्रॉब्लम है, वो चाहे पैर हिल रहे हैं या जबान लड़खड़ा रही है या जो भी गतिविधियां हो रही है शरीर में, इसको मैं बाद में कर लूंगा घर जाके। अभी आई थिंक ये सब चीजें त्याग के व्हाट आई एम सपोज टू डू, लेट मी डू दैट, अपना काम मैं सही से करूँ। और जैसे ही मैंने ये मन में एक संकल्प किया, एक विचार किया, वो सारा बहस जो था वो उसी समय चल गया। और उसके बाद फिर मैंने अनगिनत प्ले करे, बहुत बड़े लेवल पे भी किए, स्टेट लेवल पे किए, नेशनल लेवल पे किए, काफी सारे अवार्ड भी मिले। तो आई थिंक ये स्वयं का ही चिंतन होता है। कोई ऐसी फीलिंग होती है समटाइम्स वी मस्ट हैव इग्नोर्ड, कोई ऐसी फीलिंग होती है जो अनएड्रेस्ड होती है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कभी कोई इमोशन वो शरीर में रह गया, और वो इमोशन, सप्रेस्ड इमोशन, पता नहीं कब वो बाहर आता है शरीर से। दैट्स व्हाई वी से कि ध्यान हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है। जो इनर जर्नी की हम लोग बात करते हैं, इनर जर्नी द रेवोल्यूशन विद इन, तो आई बिलीव कि द रियल रेवोल्यूशन बिगिंस व्हेन यू गो इनटू इनर जर्नी। जो अंतर यात्रा, एक आंतरिक क्रांति है, वो क्रांति कहीं बाहर नहीं है, वो क्रांति तो भीतर घटित होनी है। और उसी समय व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू कंटेम्पलेट, तो आपको दिखते हैं बहुत सारे विचार। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं ध्यान में जाने की कोशिश करता हूँ
तो इतना सहजता से मैं ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाता। आप लोग में से भी काफी सारे लोग मुझे निजी रूप से जब बात करते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के रहते हैं। तो उसका कारण केवल यही है कि बहुत सारी जो बातें हमने इकट्ठी की हुई हैं या कभी कोई इमोशन निकल के आ जाता है, तो व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन तो उस समय वो सब चीजें दिखाई देने लगती है। और वो ऐसा हो जाता है जैसा आसमान में बादलों की भांति क्लाउडी हो जाता है, सब कुछ फॉगी हो जाता है। तो जब गाड़ी चलाते हैं और जब सामने देखते हैं दिल्ली की सर्दियां, उत्तर भारत के अंदर तो बहुत सर्दी होती है अभी आने वाली दिसंबर जनवरी में, तो देखते हैं कोहरा छा जाता है, फॉग हो जाता है चारों तरफ। और जब फॉग हो जाता है तो उस समय दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। फिर उस समय लाइट ऑन की जाती है गाड़ी, येलो लाइट जब ऑन होती है तब वो उस फॉग को चीरते हुए आपको आगे का मार्ग दिखाती है। तो ये हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी लाइट है, ऐसी कौन सी रोशनी है जो मेरे अंधकार को, जो मेरे कोहरे को, जो मेरे फॉगी सिचुएशन जो हो गई है उसको काट के मुझे मार्ग दिखाएगी। तो ये जो है एक चिंतन अगर हम करें तो आई बिलीव दिस वुड बी एन आई ओपन। ओके, स्वाति is there. Swati, let me unmute you. Yes, प्रणाम please. गुरुजी। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण भी हम फियर्स आते हैं, सेल्फ डाउट के कारण आते हैं कि कभी पास्ट में हम सक्सेस नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम जब हम ट्राई करते हैं तो वो जो वरीड रहते हैं उसके लिए, जो डाउटफुल रहते हैं उसके कारण वो फीलिंग्स आती है। Absolutely. बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कभी, वही मैं जो बता रहा था कि कभी किसी ने जैसे कुछ कह दिया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंगिंग करते हैं या डांस करते हैं, वो लोग बीच में बंद कर देते हैं। तो मेरी काफी लोगों से जब डिस्कशन होता है तो वो बताते हैं कि ऐसा अक्सर हुआ है कि कभी उन्होंने जैसे कुछ गाना और किसी ने कह दिया हो कि भाई बस अब क्या करके मानोगे, थोड़ा चुप ही हो जाओ। और परेशान हो जाते हैं जब आसपास वाले जिस कारण से भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते लोग। कहीं ना कहीं उनके मन में मुझे लगता है कि शायद वो खुद भी अप्रिशिएट कभी नहीं हुए होंगे लाइफ में, क्योंकि जो हमारे साथ घटित होता है हम वो आगे पास ऑन करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत खुल के हंस नहीं पाते, कुछ लोग होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते किसी की अच्छी बात, कि अगर कोई अच्छा कभी दिखता है, कोई अच्छा बन के आया है तो उसको बोल नहीं पाते कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। या अगर किसी ने बहुत अच्छा गायन किया है तो बोल नहीं पाते कि आपने बहुत अच्छा गायन किया है। या कोई कोई भी छोटा मोटा अगर घर में किसी ने कोई काम किया है तो हम जो एक नुक्स निकालने की जो हमारे में आदत है, फाइंडिंग फॉल्ट्स, वी आर वी आर गिफ्टेड विद दिस इनहेरेंट इनबिल्ट क्वालिटी। जैसे हमारे आईफोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड फीचर भी होते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी ये फीचर है, गिफ्टेड है कि हमें ये फीचर गिफ्ट में मिला है कि दूसरे के अंदर बुराई होती है और परफेक्ट हम होते हैं। तो ये वाला जो ये फीचर है इनबिल्ट होता है सबके अंदर। तो जब हम देखने लग जाते हैं दूसरों के अंदर फॉल्ट्स, चलिए वो भी ठीक है, पर एक लिमिट है उसकी भी। उसका ऑपोजिट ये है कि आप अप्रिशिएट करें। तो अगर 0.1% या 0.2% आप अप्रिशिएट करते हैं और बाकी की जो परसेंटेज है 99%, वो आप लोगों को डिमोटिवेट कर, तो इस सिचुएशन को वाइस वर्सा कर देना चाहिए, अपोजिट कर देना चाहिए। 99.9% आप लोगों को अप्रिशिएट करें, और 0.1%, क्योंकि आदत बहुत प्रगाढ़ है, संस्कार बहुत मजबूत है, मन तो करेगा गलतियां निकालने का, तो 0.1% कर दें उसको। एकदम से जाते जाते तो नहीं जाएगा, बट इफ यू कीप इट लेस और लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, आई बिलीव, तो बहुत सारी हमारी जो लाइफ में पॉसिबिलिटीज है वो चैनल्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं। And when we start appreciating others, we actually feel good. और उससे पहले तो मुझे लगता है कि अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहले तो ये होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से अच्छे गुण, व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज डू आई हैव, क्या क्या ऐसे काम हैं जो मैं बहुत अच्छे से करना जानता हूँ, क्या क्या ऐसे काम हैं जिनको करके मुझे आनंद आता है, उन कामों को बढ़ाना चाहिए। जैसे किसी को सत्संग में आनंद आता है, किसी को भजन गाने में आनंद आता है, किसी को लिखने में आनंद आता है, किसी को गाने में आनंद आता है, सबके अपने अपने।
कोई है पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, कोई कोचिंग करता है बहुत अच्छी, कोई कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो उसको मन करता है कि मैं जितना लोगों को सिखा सकूं लोग मुझसे सीख पाए। और किसी किसी का डांटने का भी होता है कि बस एक ऐसी पावर मेरे हाथ में आ गई है जहाँ जिस पोजीशन पे मैं आ गया हूँ वहां पे लोगों को डांटता रहूं, कुछ ऐसा बोलता रहूं जहाँ पे मेरे अहंकार को तृप्ति होती रहे। और सामने जब बैठा व्यक्ति, जब वो 2 टाइम पंच करके और 1 टाइम लंच करके जब मेरे दफ्तर में काम करता है और उसका जब चेहरा थोड़ा मायूस हो जाता है, जब वो थोड़ा व्यथित और दुखित हो जाता है, तो उससे मेरे अहंकार को तृप्ति मिलती है। तो एक ऐसी भी सोच होती है। तो इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि किस तरीके की प्रकृति है हमारी और कैसी हमारी प्रकृति थी जब हमारा जन्म हुआ और क्या हमने अपने साथ कर लिया है। तो ये जो एक चेंज आया है हमारे अंदर, या ये कहें कि चेंज को हमने जो इनवाइट किया है, इस पर अगर चिंतन हो, then we can definitely get rid of this thing which is unnecessary. Who else like to go next? Chetna. Yes, Chetna, you can speak. Hello, I am. Okay, introduce yourself to everyone. I think you might already know me No, from. there are many new people who would like to know you. Jai Gurudev, my name is Vinod. I am the son of Chetna. And you are from Chennai. No, I am from Bangalore. You are from Bangalore. Okay, okay. Yes. Yes, speak. So mainly, my fear is that somewhere someone, and I mean by somewhere someone, I mean many people will be hating me no matter what I do. Like for no reason they hate me, and I can't believe it. I never did anything wrong to those people, and for some reason they hate me. Okay, give me a situation, an example. Let's go into the situation. Let's say that you're just walking past someone, and then you just happen to hear, I hate this guy, and then after a while you start to realize that they were talking about you. Like, this guy is so bad, he's very annoying. Vinod, you Point. are. Yeah. Okay. No, but why do you think that they are your classmates or someone else? Sometimes it's my classmates, some of them do that, and then sometimes it's just random people Okay. which I find in the corridors. Of your age group or similar age group? Of my age group. I'll tell one more thing. Like, I just want to be a nice person, but I also want to be fun. But it seems like whenever I be fun, it somehow manages to offend people, even though when someone else does the same thing, it does not offend any other people. It's like a hypocrisy thing. Like, see, there's one guy called Pranav in my class. He always supports one guy called Arav, okay? If he does one bad thing to me, I also do one bad thing to him. He's like, oh, da, what are you doing, da? Very bad, da. If that guy does it 10 times and I only do it once, it seems like I am the bad person. See, I would tell you one thing. You remember last time also I said, don't try to become nice because you have to look within and you are already nice. When you try to become something, it means you're not that. Okay. So first, accept yourself and spend good time with yourself. Okay. And every day remind yourself that I am the best person and I am here to do something great in my life. Okay. And whenever someone is giving you pain, someone is giving you stress, or people are hating you, just let it be. You know, sometimes we try to be funny
But that being funny behavior is really not funny. Okay. Forget about what your classmates are doing. If any activity, what you are doing, is creating trouble in others' life, that is not fun. A real fun is something in which you and your friend, both of you can laugh together. If you are doing fun with your friend, your classmate, or whatever, if you are the only one who's feeling funny, who's laughing, then that's definitely not fun. Okay. The real fun elevates you. The superficial fun demotivates you and takes you on a very lower plane. So, No. so just keep that situation in such a way that you elevate yourself and your friends, those who are hating you or whatever they are doing, they should feel like talking to you. And even if they are not talking to you, that should not be the priority that they should talk to you. You focus on yourself. Otherwise, what will happen? You will constantly focus on them, and time will pass, and you will miss yourself. You will lose yourself because others are not important. When we think others are important, then we lose our identity. We 24 hours focus on that person, even while eating, drinking, sleeping, taking bath or whatever. Can I say And something? when we shift our attention from here to the other person, then life becomes chaos. Yeah, now you can speak. See, sir, regarding the fun thing, actually, I wanted to say that no, when the same joke is made by the other person, told to the exact same person, where other people are doing the same thing to them, he is okay with it. But suddenly, when I do it to them, it seems offensive. Yes, because people want to make fun of others. And when the same thing happens with me, I don't feel right. This is the attitude which people have. So just understand the human nature. We want to be treated best, but we don't want to treat the other person the best. And we want to satisfy our ego while making fun of others. But when the same thing happens to me, then I don't feel good. So this is basic human nature. So next time when this happens, this situation will happen anyway, isn't it? So when this situation happens, just keep quiet for a moment and don't say anything. Don't say bad or don't say good or don't say anything. Just close your eyes and remember what I'm saying. That time, just close your eyes and ask yourself, is it really important for me to reply? Or is it possible for me to just be what I am? Just say this and let the answer come on its own. And then decide. What is happening is you are immediately taking their words seriously and you are reacting. Your reaction is based on what they are doing. So the important thing is to not react. The moment you stop reacting, then the whole situation will change. Just this, nothing else. Okay, Vinod? And Yes. next week, just tell me. Next week, when we will meet on Wednesday, just let me know how this formula works. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Thanks for the information which you have given me. Thank you. Thank you, Vinod. Thank you, Prabhuji. Okay, Riksha, please speak. Pranam Guruji and everybody else. About fear, clarity, I just wanted to say that usually I've never had
fear of any workplace situations. I mean, I've been very strong at my workplaces, all my workplaces, wherever I've worked. And in fact, I've trained people on public speaking. That has been my forte. And somebody mentioned fear of losing parent. तो उस केस में भी my father, I lost my father in 2016. In fact, 2015 में मुझे strong intuition हो गया था that something is going to happen. And despite the fact that 2016 my father was diagnosed with stage 4 cancer, which we didn't know before, but मुझे feeling आ गई थी that I'm going to lose something soon. तो उसका भी मुझे fear नहीं था, but of course, you know, the trauma that it brings for you later, the cycle of grief that you go through, that also a person goes through. No problem about that. Then children moving out also, because children will grow up and they'll move out. उसका भी डर नहीं है. मैं आपको एक situation बता रही हूँ जो मेरी repeatedly there has been a cycle. If we have to choose between two alternatives and both are logical alternatives and one is strongly my choice and another one is suggested by my family, I always end up choosing the one suggested by my family. And this happens in family situations and emotional situations. And repeatedly, this has happened in my life. और उसमें मेरा लॉजिक हमेशा ये रहता है कि उसी में भला जिसमें सबका भला. If everybody thinks like this, then it's okay. I don't want to hurt so many people together just to please myself. So I'll go by this alternative that you're suggesting to me. और उसमें भी मुझे डर नहीं लगता. I go by that, and whatever obstacles or challenges I face. But then it gives me a feeling of sadness at the end of the day. Eventually, after years or after months. और ये एक repeated cycle रहा है. हमेशा ये रहा है और शायद आगे भी यही होगा. If I can, you know, curb this, or if I can work on it with your suggestions, that'll be very fruitful. So what do you think? How can you change if I ask you, okay, how can you change the situation? So what Yeah, are the if I look at it from third person perspective, then क्योंकि होता ही है कि उन्हीं situations में हम अक्सर parents की या family की brothers sisters की बात मानते हैं जब हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा experienced है. और ये सच भी होता है. I mean, you might go by your instinct and your desires and probably your hormones, but जब आप सोचते हैं कि नहीं, उनका experience is valid and they have had similar experiences and according to that only they suggest. तो मैंने हमेशा चूज वो किया है और आज भी अगर मेरे सामने सिचुएशन आए तो मैं शायद वही चूज करूंगी. And then I live with that sadness that I have felt over the years. और क्योंकि मेरे पास मतलब कोई मेरी इनफैक्ट इफ आई हैड माय डॉटर जिसको मुझे इसका सॉल्यूशन देना होता तो मेरे पास इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है. तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ. so just give me a situation, कोई एक ऐसी situation दीजिए जहाँ पर ऐसा हुआ और उसको understand करते हैं. I mean, moving abroad forever, or you know, choosing you know, program for education. So let's say moving abroad का लेते हैं example. तो इसमें क्या हुई situation, कैसे आपके पास opportunity आई बाहर जाने की और इसमें क्या Opportunity actually मेरे husband के through ही आई थी, of course, and since it's a couple case, then you have to move. And then the second partner finds out work at the other place, which I also found, and I did part-time work here. So that is not a problem. But the problem is that by my moving abroad, everybody in the family would be like, okay, it's a good opportunity. You guys must move out. But मैं by heart एक nationalist हूँ. Total nationalist. And I don't see an opportunity to come back and settle. Not at all. I mean, my heart is totally with India. And I would say that if I were to appreciate the country I am in right now, I have like 120% feedback for the country. अच्छा, ये भी कितनी बड़ी एक आयरनी है कि विडंबना की बात है कि जो भारत में रह रहे हैं वो विदेश जाना चाह रहे हैं और आप जैसे स्वीडन में हैं. अब किसी भारत के व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे उनके वीजा नहीं लग रहे हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं. और जो जिसके भाग्य में जो होना होता है वो हो जाता है.
मतलब वही। आपको वीजा भी लगेगा, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, आप सेटल भी हो जाएंगे, आपके बच्चों का भी बहुत भला होगा उसमें। और बट जब देन बाहर चले जाते हैं तो फिर मन कर रहा है कि इंडिया आने का। या बट माय हार्ट क्रेव्स फॉर इंडिया, टू लिव इन इंडिया, टू बी देयर। तो ये एक सिचुएशन है, ये बहुत छोटी सी सिचुएशन है, ऐसी कम से कम 10-20 सिचुएशंस होती है जिसमें मैं हमेशा चूज करती हूँ फैमिली, हस्बैंड, बच्चे। मुझे मतलब मुझे मुझे एक बात लगती है, जो मैंने एक पैटर्न जो देखा है, जो समझा है, हम्म, कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि जैसे कोई कोई हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि वो स्वीडन चले जाएं, और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग स्वीडन में होंगे जो चाह रहे होंगे इंडिया आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है लाइफ में कि हम कुछ चाह रहे हैं और ऑपोजिट वाला उसके ऑपोजिट सिचुएशन जो हमारी है वो चाह रहा है। पर मुझे लगता है कि जहां पर भी हम हैं, जैसे इवन हमारे आज के सेशन में भी आप जैसे स्वीडन से हैं, विमलताई यूएस में है अभी, और गौरी जो है अभी हांगकांग में है, सब अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से, और अलग अलग कंट्री से भी है, जाकर टाइम जोन्स भी अलग है। तो मुझे लगता है हम जहां जहां पर भी हैं, प्रकृति ने हमारे लिए वो बेस्ट चूज किया हुआ है। हमें शायद उस मोमेंट पे वहां होना है, इसलिए वहां पर है। जैसे मैं अभी आपको अपना एग्जांपल दूं कि मेरा जन्म दिल्ली का है, और मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो पुणे है फिलहाल। और मेरा जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मेरा भ्रमण भी रहता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं केदारनाथ में था, दिवाली मेरी केदारनाथ की रही। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे दिवाली पे घर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं दिवाली पे हम अपना घर नहीं छोड़ते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपना घर होता कौन सा है, इंसान किसको कहता है अपना घर, क्योंकि घर तो परमात्मा के ही है, इंसान के तो घर है नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केदारनाथ था मैं, फिर उसके बाद मैं ऋषिकेश आ गया, फिर अभी ऋषिकेश से मैं फिर पुणे आ गया। फिर पुणे में जो मेरा काम था वो मैंने किया। अभी फिलहाल जैसे मैं बोध गया में हूँ, कल मैं राजगीर जाऊंगा, फिर नालंदा जाऊंगा, परसों मैं फिर प्रयागराज में हूँ। तो ये जो यात्रा है, मुझे लगता है कि जहां पर भी प्रकृति ने संयोग बनाया हुआ है बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। हम होते हैं। अब तो उसके मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये हाँ, एक्सेप्टेड तो है। बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि दो ऑप्शन है। पहला तो ये है कि हम ये कहें कि मुझे होना वहां था, लेकिन मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे वहां होना था। तो एक फोमो भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी नहीं है, नहीं, तो इतना जाना। कुछ नहीं है। नहीं, एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो अगर यूएस में है या किसी दूसरी कंट्री में, तो उनको लगता है कि हमारे देश में बहुत सारे ओकेजन हो रहे हैं, वहां पर हम मौजूद नहीं है, और इस बात का दुख भी होता है। तो एक सिचुएशन तो है कि आप दुखी हो कि अरे मैं नहीं हूँ, कैसे क्या है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप स्वयं के साथ एक ऐसा नाता बना लें कि जहां पर आप ये समझ लें कि जिस क्षण में जहां पर हूं वहां पर पूरी तरह से मौजूद हूं, और प्रकृति ने मेरे लिए शायद कुछ ऐसा सोचा है कि जिसके कारण मैं यहाँ पर हूं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, पर आप जानती हैं, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता कि क्या हमारे हिसाब से कुछ होता है। पता नहीं कितनी चीजें होती है हमारे हिसाब से, लेकिन एक हायर पावर है, वो जो दिव्य चेतना है, वो जो परमात्मा नाम दे, ईश्वर दे, कोई भी नाम दे उसका, हायर पावर कुछ भी कहे, तो वो जो है वो कुछ उसने हमारे लिए कुछ ऐसा किया हुआ है जो ये डिसाइड कर देता है कि आपको यहाँ पर होना है। हमें बस अपने पात्र प्ले करने हैं। हम, ये तो एक लीला हो रही है, ये तो एक बहुत बड़ा एक ये कहें कि मंच है। और बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं एक शब्द कहता हूँ कि इट इज कॉल्ड डिवाइन कॉन्स्पिरेसी। यस यस। तो एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग इज ए डिवाइन कॉन्स्पिरेसी। तो जो भी है सिचुएशन, उसको आप एक्सेप्ट करें। और क्या पता कि इंडिया वाले जो है वही आ जाए आपसे मिलने के लिए वहां पे, क्या पता हम आ जाए आपसे मिलने वहां पे, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। वही। तो कई बार सो सिचुएशन, क्योंकि लोगों से और जो एक भूमि से एक हमारा जो कनेक्शन होता है, वो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी एक स्मृति है, उसकी हमारी चेतना में एक बहुत गहरी जो एक छाप है वो होती है। उससे कोई परहेज नहीं कर सकते हम, वो होता ही है। पर नियति के अपने हैं। अब राम नहीं चाहते थे, वो तो राज्याभिषेक हो रहा था,
सोचा भी नहीं था कि राज्याभिषेक होते होते एकदम 14 साल का वनवास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है, तो ये सब चीजों से हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो Yeah, ये सिचुएशन है, तो एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग, यही एक yeah, बोला है। yeah. मैं तो यही Thank you for joining. सीखा है जी, बिल्कुल। Thank you एक्सेप्ट so much. रिजेक्ट नथिंग, थैंक यू। तो ठीक है, तो कुछ क्षण के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, लेट्स मेडिटेट। और ये रोशनी आप लोग देख रहे हैं इस लैंप के माध्यम से, ये मैंने आप सभी लोगों के बिहाफ पे यहाँ पे जलाया है। एंड आई बिलीव कि ये जो दिव्य प्रकाश है ये आप सब लोगों तक पहुंचे, और जो भी जीवन में अंधकार है उस अंधकार को काटते हुए ये दिव्य प्रकाश आप सभी लोगों के जीवन में ऐसे ही प्रकाश भरे, और हम सबके जो चरित्र हैं, चेतना है, हमारे जितने भी गहरे से गहरे जहां पर भी अंधकार है, उन अंधकारों को काटते हुए एक प्रकाश विद्यमान रहे हमारे जीवन में। ऐसी संकल्प और ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज का ध्यान करते हैं। पूरी गहरी सांस अंदर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और गहरी सांसें बाहर छोड़ेंगे। इमेजिन अ जेंटल गोल्डन लाइट ग्लोइंग विद इन, एक स्वर्ण के भांति वो रोशनी जो हमारे भीतर है वो प्रकाशमान हो, और हर श्वास के साथ उस रोशनी को और फैलता हुआ देखें। जितनी भी हमारी दुविधाएं हैं, जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी भय हैं, उन सबको मिटाते हुए, क्लियरिंग कंफ्यूजन एंड मेल्टिंग फियर, लेट इट शाइन। Now silently repeat, I choose clarity, I choose clarity, I choose clarity. I trust my inner guidance, I trust my inner guidance. Let us feel a wave of peace and strength surrounding you. एक शांति महसूस करेंगे, और परमात्मा की जो दिव्य ऊर्जा है उसकी स्ट्रेंथ, उसका बल जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। लेट अस फील दैट स्ट्रेंथ। On this special occasion of Kartik Purnima and Prakash Purab, the festival of light, Deepotsav, let my inner lamp remove all the darkness, fear, and confusion, and may I be able to see the truth and the reality of this existence. So be it, so be it. Inhale and exhale. पूरी गहरी सांस अंदर, गहरी श्वास बाहर।
दोनों हथेलियों पर रख लेंगे, अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे उस दिव्यता को, फील दैट एनर्जी, ब्रिंग अ वेरी जेंटल स्माइल, बहुत प्रेमपूर्ण मुस्कुराहट रखेंगे अपने चेहरे पर, एंड वेरी जेंटली ओपन योर आईज, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, एंड लेट अस ऑल शेयर आवर ब्यूटीफुल स्माइल्स विद ईच अदर, अपनी प्रेमपूर्ण मुस्कुराहट सभी के साथ शेयर करेंगे। ये एक चीज ऐसी है कि जितना हम लोगों के साथ बांटते हैं, प्रसन्नता और बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये मंत्र हमेशा सदैव जीवन में याद रखें कि बहुत गंभीर होकर, बहुत सीरियस होकर ना बैठे, क्योंकि प्रभु के द्वार उन्हीं के लिए खुलेंगे जो मुस्कुराते रहेंगे, जो जीवन को एक उत्सव की तरह, आनंद की तरह देखेंगे। जो बहुत सीरियस लोग हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, वो बिजी रहेंगे, वो मुस्कुराने के लिए उनको यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर कॉमेडी शो देखने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रभु प्रेमी है, उन्हें ना कॉमेडी शो देखने होते, ना उन्हें किसी प्रकार का कोई बाहरी कोई साधन चाहिए मुस्कुराने के लिए, क्योंकि आनंद तो हमारे भीतर ही है। तो अब इसलिए जो भी हमसे मिलता है, उनके भी लाइफ के अंदर हम कुछ अच्छा ऐड कर पाते हैं प्रेमपूर्ण मुस्कुराहट के साथ। तो with this, may all of you feel that light जो यहाँ पर आप सबके समक्ष मौजूद है। Be and blessed। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप आज के जो रिफ्लेक्शंस है, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इसमें आप अपने रिफ्लेक्शंस अभी शेयर कर दें, बिकॉज अभी फ्रेश होते हैं। जब फ्रेश हम शेयर कर देते हैं तो हमारी मेमोरी में भी रहते हैं, एंड एनी टाइम वी कैन गो थ्रू दैट, क्योंकि वो चैट में सेव भी रहता है। So with this, thank you so much. May all be happy and blessed. Blessings to you all. Namaste. Thank you.